Good morning, students. Now we have to proceed the same chapter. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Jordan Cook and Alan East. Earlier I told you this chapter has been divided into 3 sections. And we are studying here the very first section of the chapter. We can subtitle it Dream Ends Up in Disaster. Whatever the dreams of the narrator and his wife, then they feel that they are at the end stage of that dream. And I told you earlier the narrator started his journey on July 1976. And later I also told you what the problem was faced by the narrator. The first problem that was faced by the narrator when they had covered the distance of Cape Town. At the time, the problem was faced by that year, especially the size of the wave. The size of the wave was near about 15 meters. It was as big as main mast. You can also observe the mast is that here. This part is called the mast. इसको यहाँ mast कहा गया है. इतना बड़ा size किसका था? Wave का था. Okay, we'll continue the same. December 25. You must write the meanings of the hard words in your book as I wrote. These things will be very helpful to you. Especially I've written only for you. What happened on December 25? July started journey. Now 25th December was there. On December 25th, found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Earlier I told you about Cape Town. The narrator had hired the two crewmen from there, Herb Sagler and Larry Wiesel, and now they were away from Cape Town, east of Cape Town. At least they covered the distance of 3,500 kilometers from Cape Town. Now, only the size of the wave was a problem for them. Despite atrocious weather, atrocious means very hostile, the weather was not favorable, and we had a wonderful holiday. Now, even then, they had an optimistic approach. The weather was not good. Weather अच्छा नहीं था. Even then, they enjoyed the Christmas occasion. We had a wonderful holiday with a Christmas tree, because you know very well that year that was the Christmas occasion of 25th December is there. They enjoyed a lot despite atrocious weather. New Year's Day saw no improvement. Even after 6 days, it means on 1st January, no change was observed in the weather. Even then, they was looking very hopefully. They thought the change would come positively, that no improvement was seen in the weather, but we argued that it had to change soon. It for the weather. उन्हें लगा शायद weather में कुछ change आएगा. ऐसा पॉजिटिव वो नज़र आ रहे थे. हाँ, चेंज आया, लेकिन नॉट इन अ पॉजिटिव वे, बल्कि फॉर द वर्स्ट टू वर्स्ट. सिचुएशन बद से बदतर हो गई. एंड व्हाट हैपन ऑन 2 जनवरी. 1 जनवरी का था, उससे पहले 25 दिसंबर का था. एट डॉन ऑन January 2, डॉन मीन्स हियर द टाइम बिफोर द सन राइजिंग. मॉर्निंग में क्या हुआ 2 जनवरी को? The waves were gigantic. The size of the waves were very alarming, very huge. अब वेव का साइज और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया. We were still sailing with only a small storm jib. अभी जो हम क्या कर रहे थे, एक only small storm jib की हेल्प से चल रहे थे. Storm jib is called that a small sail which is used at the time of the storm. और यहाँ पर क्वेश्चन अब क्रिएट होता है कि जिप किसे कहते हैं. यू कैन सी द जिप हियर. इसको जिप कहा गया है. यू कैन सी दिस पिक्चर एट द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. जिप. देन व्हाट हैपेंड हियर. एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स. अब नोट्स क्या होता है? नोट्स मीन्स हियर सी माइल्स. जैसे हम सड़क पे चलते हैं, हमारी गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है, जो भी कुछ जितना भी है, उसी तरह से यहाँ पर भी सी माइल्स में भी क्या होता है,
किस मेजरमेंट होता है। अब यहाँ पर नोट्स का क्या होता है, नोट्स मीन्स हियर 1 नॉटिकल माइल इक्वलेंट टू 1852 मीटर्स। स्पीड कितनी थी, 1852 मीटर्स पर आवर की स्पीड से शिप चल रहा था। It means the ship was running very fast, the boat was running very fast, and we were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. Now the condition was really very pitiable. अब यहाँ पर ship was running very fast. That's what happened here. जब शिप बहुत तेजी से चल रहा था, the top of each wave, the wave was coming towards that side. और what we were able to see कि हर पल हमें क्या नज़र आ रहा था कि जैसे सी हमारी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा। और सी को भी कैसे डिस्क्राइब करा, एंडलेस, कभी ना ख़त्म होने वाला, इनॉर्मस सी वॉज कमिंग टुवार्ड्स देम, जैसे उनकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। द सी हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन एन एग्जीक्यूटेड मैनर। थोड़ा सा सीन को और भी ज़्यादा फ्रैटनिंग फॉर्म में प्रेजेंट करा गया है। एंड द स्क्रीमिंग और द विंड। अब डेजर्टेड एरिया था, मतलब खाली एरिया था, और वहाँ जब हवा चलती है तो आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई देती है। ऐसे लगा था विंड वॉज स्क्रीमिंग, चीख रही हो। पर्सोनिफिकेशन डिवाइस कैन ऑब्जर्व कि विंड ऐसे लग रहा था जैसे चीख रही हो। और विंड के चलने से जो पानी के जो स्प्रे आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रहे थे कानों को, ईयर्स को। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग वॉज देयर। What steps were taken by the captain or the narrator to protect the ship? शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टेप लिया गया कि स्पीड को कम करा गया, बोट की स्पीड को कम करा गया। टू स्लो द बोट डाउन, यहाँ पर वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने क्या करा, जो स्टॉर्म जिप थी उसको ड्रॉप कर दिया। एंड लैश हैविंग मोरिंग रॉप। अब मोरिंग रॉप क्या होती है कि मोरिंग रॉप इज दैट रोप विच इज यूज फॉर टाइंग द बोट टू अ फिक्स ऑब्जेक्ट। वहाँ कोई फिक्स ऑब्जेक्ट होगा, उससे उस हैवी रॉप से क्या कर दिया गया, बोट को या शिप को बांध दिया गया सेफ्टी के पर्पज से। और यहाँ पर वी न लेटर व्हाट स्टेप वाज टेकन और मोर दैट ईयर, लैश मीन्स फास्टन या टाई rope in a loop across the stern. Stern means होता है बैक पार्ट ऑफ द शिप को क्या कहा जाता है, stern. You can also see that here. Stern means बैक पार्ट ऑफ द शिप को क्या कहा गया है, stern. You can see that here stern is called the back part of the ship. उसके बाद क्या स्टेप लिया गया, then we double lash everything. हमने हर चीज़ को डबल टाई कर दिया, हर चीज़ को डबलिंग टाई कर दिया, एवरीथिंग को। Went through our life raft drill, attach lifelines, and donned oilskins and life jackets and waited. These steps were taken by the narrator. अब what are these words? Be careful. पहला होता है कि लाइफ राफ्ट ड्रिल होती क्या है। लाइफ राफ्ट ड्रिल मीन्स प्रैक्टिसिंग हाउ टू क्लाइंब इनटू अ लाइफ बोट इफ द मेन बोट सिंक्स। अगर मेन बोट जब डूबने लगती है, किस तरह से उस लाइफ बोट में क्लाइंब करना है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है इसके थ्रू। अब दूसरा वर्ड आता है लाइफ लाइन्स। अब लाइफ लाइन्स क्या होती है, लाइफ लाइन्स आर दोज रोप्स, उन रोप्स को कहा जाता है जो पर्सन की बॉडी के अराउंड बांध दी जाती हैं, जिससे कि पर्सन डूबने से बच जाता है। अब थर्ड है ऑयल स्किन्स कहा जाता है वाटर प्रूफ कवरिंग को। और लाइफ जैकेट्स क्या होती हैं, उन जैकेट्स को कहा जाता है जो विदाउट स्लीव्स होती हैं, विच कैन बी फिल्ड विद एयर टू हेल्प पर्सन्स सो दैट ही कुड फ्लोट ऑन द सी, जिससे कि पानी पे वो क्या कर सके, तैर सके। ये सब अरेंजमेंट यहाँ पर ऑथर ने करा कि लाइफ ड्रिल की प्रैक्टिस करा, लाइफ लाइन को अटैच कर दिया गया, ऑयल स्किन्स को उन्होंने पहना, डॉन मीन्स वियर, टू पुट ऑन, और लाइफ जैकेट्स को भी उन्होंने पहना। अब यहाँ पे सेफ्टी के लिए ऑयल स्किन्स का मैंने बताया कि ये वाटर प्रूफिंग है, और लाइफ जैकेट उनकी सेविंग के लिए था, और लाइफ लाइन्स को उन्होंने बांध ही लिया था। और हम इंतज़ार करने लगे कि व्हाट वुड हैपन नाउ।
The first indication, we knew very well that something would happen wrong. The first indication of impending disaster came. Impending means here approaching या imminent. हमें पता था कुछ ना कुछ होने वाला है. और जो पहला इंडिकेशन जो डिजास्टर्स का में नज़र आया वो क्या था, वो कब स्टार्ट हुआ, लगभग एट अबाउट 6 PM शाम को. ये 2 जनवरी का सीन चल रहा है, ध्यान रखना. शाम को पहला इंडिकेशन नज़र आया विद एन ऑमिनस साइलेंस. ऑमिनस साइलेंस कहते हैं कि क्विकनेस जस्ट बिफोर सम डेंजरस हैपनिंग. जैसा होता है ना कि मतलब कुछ बुरा होने से पहले की जो साइलेंस होती है उसको कहा गया ऑमिनस. ऑमिनस कुछ समथिंग इज गोइंग हैपन टू रॉन्ग. अब क्या बिल्कुल शांति हो गई थी, पर यह अंदेशा था कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है. व्हाट हैपेंड हियर, द विंड ड्रॉप्ड. विंड ने चलना बंद कर दिया. द विंड स्टॉप एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क. और स्काई बहुत गहरा हो गया, डार्क हो गया. देन केम अ ग्रोइंग रॉर. और ऐसे लगा जैसे यू कैन लिसन द रॉरिंग साउंड, जैसे शेर दहाड़ने की सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी. एंड द इनॉर्मस क्लाउड, क्योंकि जो क्लाउड है, इनॉर्मस क्लाउड, बहुत बड़ा क्लाउड ऐसे लग रहा था टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप. एफ्ट मीन्स मतलब वही बैक पार्ट ऑफ द शिप को कहा जाता है, जो बिहाइंड द शिप के पीछे का पार्ट उसको कहा जाता है. तो हमें ऐसे लगा शिप के पीछे जैसे बहुत बड़ा क्लाउड टॉवर के फॉर्म में जैसे आ रहा हो. रियली दे वर फ्राइटेंड. विद हॉरर द नरेटर रियलाइज दैट, बाद में उसे रियलाइज हुआ कि इट वॉज नॉट ए क्लाउड, कि ये क्लाउड नहीं था बल्कि ये क्या थी, वेव थी. नो अदर हैड एवर सीन. इतनी बड़ी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि अर्लियर हैड सीन द साइज ऑफ द वेव 15 मीटर्स, और ये तो उससे भी डबल थी. इट अपीयर्ड, वेव के लिए आया यहाँ पर, इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये बिल्कुल सीधी थी. और ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स. जो पहले वेव्स चल रही थी उससे भी डबल इसका साइज था. विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट. और ये बहुत ही भयानक थी और ब्रेकिंग क्रेस्ट. और यहाँ पर ये ऐसे लग रहा था इसका जो टॉप, जो वेव क्रेस्ट में टॉप, जो वेव का जो टॉप था ऐसे लग रहा था ओवर टर्निंग फॉर्म में, जैसे कि क्या होगा, ये ओवर टर्न हो जाएगा. नाउ लेटर व्हाट हैपेंड, द रॉर इंक्रीज टू अ थंडर. जो रॉरिंग साउंड थी वो किस में तब्दील हो गई, थंडरिंग साउंड में, कड़कड़ाहट में, गरजलाहट में शुरू हो गई. एज द स्टर्न मूव्ड अप. अब स्टर्न जो बैक पार्ट ऑफ द शिप था वो मूव अप हो गया. एंड द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. मतलब इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मतलब obviously the destruction or catastrophic situation would create here, कि बड़ी डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट होने वाली थी. स्टर्न एकदम मूव अप हो गया, बैक पार्ट ऑफ द शिप का पूरी तरह से मूव अप हो गया. हर वेव के साथ जैसे वेव आती जा रही थी वो पूरी तरह से मूव होने की पोजीशन में था. और एक पल के लिए मुझ में ऐसे लगा जैसे कि हम क्या कर रहे हो, वेव के ऊपर राइडिंग कर रहे हो, ऊपर मूव कर रहे हो. बट देन तभी ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, एक बहुत तेज़ी से एक्सप्लोजन हुआ जिसने क्या कर दिया, शो के शेक मीन्स हिलाना. जो डेक था, जो हमारे शिप के जो डेक थे, फ्लोर लाइक जो कवरिंग थी, और देखो डेक मीन्स यार वी कैन से द रूफ ऑफ द शिप, और वी कैन से आल्सो द फ्लोर लाइक कवरिंग ऑफ द हॉरिजेंटल सेक्शंस. जो हमारी फ्लोर लाइक कवरिंग थी उसको क्या कर दिया, उसने डिस्टर्ब कर दिया, पूरी तरह से हिला दिया. It tore into green and white water block of the ship. अब रिजल्ट क्या आ रहा, It tore in stream. ग्रीन और जो वाइट वाटर था वो ब्लॉक ऑफ द शिप, यहाँ पर उसने पूरी तरह से शिप को डिस्टर्ब कर दिया. और यहाँ पर देखो व्हाट द रिजल्ट happened that year, कि what a physical condition of the author has been described here, कि उसकी condition of physical condition was not good as well as the mental condition was not good. Later when the question is asked connected to the physical condition you to describe that year, तो आप इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पर नरेटर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कि जब ऐसा अटैक हुआ
तेज़ी से शिप पर एक बहुत तेज़ी से अटैक हुआ, तो जो टॉलिंग स्ट्रीम, एक जो धारा थी, बड़ा तेज़ी से शिप को डैमेज कर दिया, उसके अंदर आ गई। और यहाँ पर नाउ व्हाट हैपेंड लेटर, माय हार्ट स्मैश इनटू द व्हील, द नरेटर्स हैड स्मैश इनटू द व्हील, उस नरेटर का हेड किससे टकरा गया, व्हील से। ही वॉज अ कैप्टन हियर एंड ही वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग, वो से इतना होश था कि वो कहाँ था, अब शिप के बाहर था। ओवरबोर्ड मतलब आउट ऑफ द शिप, अब वो शिप के बाहर पहुंच गया था। एंड ही फेल्ट दैट ही वॉज सिंकिंग बिलो द वेव्स, उसे लग रहा था जैसे वेव्स के नीचे डूब रहा हो। एंड ही आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड ही थॉट दैट ही वॉज नियर टू डेथ, उसको लगा कि वो डेथ के बहुत करीब था। एंड ही वॉज लूजिंग अनकॉन्शियस, ही वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस स्टेज पर पहुंचने जा रहा था, धीरे धीरे बेहोश होता जा रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, ऐसे लग रहा था ही वॉज नियर टू डेथ। अब नाउ अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, सॉर्ट ऑफ लक। किस तरह से कब परेशानी में होते हैं तो कभी कभी एक लकी मोमेंट हमारी जान को बचा देता है। तो यू कैन सी द सॉर्ट ऑफ लक हैपन हियर। उम्मीद नहीं थी, देयर वाज नो चांस टू सर्वाइव, पर अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ, फॉर्चुनेटली कह सकते भाग्यवश क्या हुआ, उसका जो हेड है, अभी ही फाउंड हिमसेल्फ बिलो द वेव्स। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, किसी तरह से मेरा हेड इंस्टेंटली वाटर से बाहर आ गया। A few meters away, what did the narrator see? नरेटर ने क्या देखा, कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, ऐसे लग रहा था कि जो वेव वॉकर थी, जो उनकी बोट थी, वो डूबने के या ओवरटर्न होने की स्टेज पर थी। हर मास्ट, हर आया है यहाँ पर वेव वॉकर के लिए, बिकॉज वेव वॉकर हैज़ बीन पर्सोनिफाइड हियर। उसके जो मास्ट थी, मास्ट एज आई अर्लियर टोल्ड एरियर, यू कैन सी द मास्ट हियर, कि उसकी जो मास्ट थी, हर मास्ट ऑलमोस्ट, ऐसे लग रहा था कि उसकी जो मास्ट थी ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, क्योंकि वर्टिकल फॉर्म में होती है, और जो हॉरिजेंटल फॉर्म में होने का मतलब ये कहीं ना कहीं कैप्साइजिंग मतलब डूबने की स्टेज पर थी। देन वेव हॉल्ड, यहाँ पर भी यू कैन सी दैट ईयर द लक मैटर वर्क्स, एक लक ने काम करा, ऑथर का बाहर निकल कर आना। अब यहाँ पर एक लक का क्या हुआ, एक वेव बहुत तेजी से आई, और उस वेव ने क्या करा, यहाँ पर उस बोट को किसी तरह से थ्रो अवे, उसको सीधा कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। माई लाइफ लाइन्स, जब ऐसा मोमेंट हुआ, लाइफ लाइन्स होती है, लाइफ लाइन आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जैसे पर्सन को बांध दिया जाता है जिससे कि पर्सन वो डूबे नहीं। तो यहाँ पर मैं जो लाइफ लाइन्स थी, रोप्स बंधी हुई थी, तो वो पूरी तरह से मैं क्या हुआ, जर्क हुआ, एकदम मूव सडनली विद अ जर्क, बड़ा तेजी से एकदम मोमेंट आया। माई लाइफ लाइन्स जर्क्ड, टॉट स्ट्रेट हो गई। आई ग्रैब द गार्ड्रेस, ग्रैब मीन्स कॉट, मैंने क्या, जो सेफ्टी रेल्स थी, जो बोट की सेफ्टी रेलिंग थी, उनको पकड़ा। एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैं किसी तरह से तैर कर कहाँ पहुँच गया, जो वेव वॉकर के जो मेन बूम थी, मैं किसी तरह से यहाँ तक पहुँच गया। दिस इज कॉल्ड द बूम पार्ट। मैं किसी तरह से वहाँ पर जो वेव वॉकर की जो मेन बूम थी, उसके पास मैं किसी तरह से पहुँच गया। अब नाउ देयर वाज चांस टू सर्वाइव। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस मी अराउंड, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वेव्स थी वो मुझे बार बार टॉसिंग कर रही थी, कभी मैं इधर फील कर रहा था, कभी उधर फील कर रहा था। टॉस मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, माई कंडीशन वॉज लाइक अ रैग डॉल, एक कपड़े की गुड़िया या पपेट होती है ना, कठपुतली की तरह मेरी कंडीशन थे। पानी की वजह से कभी मैं इधर मूव कर रहा था, कभी इधर मूव कर रहा था उस डेक पर। डिवाइस सिमिली इज देयर बिकॉज ऑफ लाइक, देखो और फिजिकल चेंज, क्या फिजिकल कंडीशन देखेगा ऑथर की, कि यहाँ पर एक पहले बताया किस तरह से ऑथर को क्या हुआ। इसके अलावा माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, जो ऑथर को एक अटैक हुआ था उसकी वजह से जो लेफ्ट रिब्स थी उसकी क्रैक हो गई थी। हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड, उसका माउथ पूरी तरह से ब्लड से भरा हुआ था। एंड ब्रोकन टीथ, टीथ वर ब्रोकन।
बट इवन देन ही डिड नॉट लीव द लास्ट होप। अब यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक भी है और दूसरा कंसेप्ट थीम का आ जाएगा इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल। जब परेशानी में होते तो हम पूरी कोशिश करते हैं अपना को बचाने की। समहाउ जबकि ऐसा कुछ हो जाता हम सीधा वी रन टू हॉस्पिटल, लेकिन अब इस सिचुएशन में वो सिचुएशन में नहीं था। इवन देन टिल ही डन द एफर्ट्स टू सेव द फैमिली मेम्बर्स। समहाउ आई फाउंड द व्हील। किसी तरह से मैंने क्या करा, व्हील लाइंड अप, लाइन अप मीन्स टिटन द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव। अब क्या दूसरी वेव ने फिर दोबारा क्या करा, उस स्टर्न पार्ट को फिर स्ट्रेट कर दिया और मैंने किस व्हील तक मैं पहुंच गया था और मैं पूरी तरह से उस व्हील को पकड़े रहा। उस पर मैं ऐसे लगा जैसे मैं लटक रहा हूँ। आई वॉज एबल टू सी ओनली वाटर एंड वाटर एवरीवेयर। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर ब्लू। The narrator could feel that the ship had water below, but he did not abandon means to leave. उसमें इतनी डर नहीं था कि he I did not abandon the wheel to investigate. If he had left the wheel, then who would tackle it? अगर व्हील को कोई टैकल नहीं करता तो शिप डूब सकता था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्हील को छोड़ दूँ। आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। आई हैव टू इन्वेस्टिगेट व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड। अगेन द luck, sort of luck happened here. Instantly what happened? Suddenly the front hatch was thrown open. Hatch means जो डोर होता है इन द डेक ऑफ शिप में, जो डोर होता है एकदम वो बड़ी तेजी से खुला। And who appeared there? Mary appeared, who was his wife. She appeared there. What she declared that year? She declared that they were sinking. और यहाँ पर उसने क्या बताया? She screamed, वो चिल्लाई कि they were sinking, कि वो डूब रहे थे। The decks are smashed. जो फ्लोर कवरिंग थी वो सब क्या हो चुकी थी पूरी तरह से। जो फ्लोरिंग थी, जो कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, उनकी जो फ्लोर लाइक कवरिंग थी वो पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, स्मैश हो चुकी थी। एंड दे वर कम्प्लीटली इन फुल ऑफ वाटर। दे वर फुल ऑफ वाटर। देयर वाज नो चांस टू सर्वाइव। दे फेल्ट दैट।